Hello guys and welcome to the 5th episode of FC Noida's Beyond the Whistle series. Let's start this episode by wishing FC Noida a very happy 4th birthday. The club turned 4 on 7th of October 2023 and in build up to our foundation day, the club celebrated a foundation week where FC Noida celebrated Indian women's football. The club celebrated its foundation week from the 2nd of October to the 8th of October, where we organized a host of activities online and offline. On the first day, the club organized an Instagram live event where we invited guests from various domains of Indian women's football. We had sports journalists, administrators, professional footballers and coaches. From day 2 to day 5, as a part of our girls development program, the club organized workshops in schools in semi-rural and rural regions of Noida and Greater Noida. The purpose of which is to scout talent from these areas and provide them full scholarship. On the 6th day, we celebrated women's football in our upcoming center in Sector 141 Noida. And on the final day, we had the first match day of FC Noida's Foundation Cup, where our existing players and parents took part in an intra-academy tournament. So now let's hit the rewind button and relive day 1 to day 7 and see how FC Noida celebrated our own foundation week. And FC Noida was really good, especially with such a great coach, a great experienced coach. So guys, let me introduce first of all Mr. Anshul Kumar Tamta, who's here with us. Anshul sir is the head of youth development at FC Noida. We wanted to see if how possible it was to develop excellence within a framework which would not be too developed. It's just a matter of pride, and I feel like that's my highlight of the life. Like if someone would ask me like what is the best thing in life you've had, is like representing my country. Hello guys, after yesterday's Instagram live event, today we are on the ground. Today, as a part of our Foundation Week celebrations, we are at Indravati Modern Public School in Sector 131 in Gadi, Shahpur. As a part of our Urban Slums Development Project, we are having a workshop with girls from the age of 4 to 10 in the school, where we plan to scout them and then train them in FC Noida's ecosystem on a full scholarship. So अभी हमारे साथ है सोनू जी, जो इंद्रावती मॉडर्न पब्लिक स्कूल के ओनर और प्रिंसिपल हैं. नमस्कार सोनू जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, अच्छे हैं. सोनू जी, आप प्लीज़ एक बार इंद्रावती मॉडर्न के बारे में बताइए. आपने कैसे शुरुआत करी, आपके स्कूल में कितने बच्चे आते हैं और वो किधर रहते हैं, क्या होता है? मैंने इस स्कूल की शुरुआत सन 2011 में की थी. बच्चे मेरे पास थोड़ा गरीबी रेखा के ज़्यादा आते हैं, ये यमुना किनारे के पास के, और धीरे धीरे अब तक मेरे पास धीरे धीरे करके 400 के समथिंग स्ट्रेंथ हो चुकी है और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं इसी मामले में, और बच्चे भी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं. अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो चुका है इसमें. स्कूल काफ़ी बढ़ गया है, जैसे आपने शुरुआत करी थी छोटे उससे, और अब 400 बच्चे, काफ़ी अच्छा ग्रोथ और वो रहा है इंद्रावती का. हाँ, इसमें स्टाफ का भी बहुत सारा रोल होता है कि जैसा हम मेंटेन करके चलते हैं, हर स्टाफ को फैमिली की तरह मान के चलते हैं. स्टाफ भी हमारा सहयोग करता है. स्टाफ की वजह से भी काफ़ी सहयोग मिला है हम स्कूल को ग्रोथ करने में. यही है कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है. 13 साल में हम इस तक पहुँचे हैं. शुरुआत मैंने कभी 20 बच्चों से की थी. इसमें काफ़ी अच्छा काम है सोनू जी. सोनू जी का सपोर्ट हमारे लिए स्टार्टिंग से रहा है. जब से मैंने सोनू जी से बात करी है कि हम ये करना चाह रहे हैं, एक वर्कशॉप करना चाह रहे हैं लड़कियों के लिए, और हम लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं फुटबॉल खेलने के लिए. सोनू जी, आपके हाँ करने के पीछे क्या सोच थी और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो हम जो कर रहे हैं? इसके पीछे यही सोच थी कि बच्चों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा, फिजिकली टेस्ट में रहेंगे, अच्छा रहेगा, खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बाहर निकलेंगे तो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए. जितना आगे जाएंगे उसके लिए उनके पेरेंट्स को भी और स्कूल की भी तारीफ होगी उसमें. इसीलिए मैंने इस आगे बढ़ने की कोशिश. थैंक यू सोनू जी. तो ये थे सोनू जी, जो इंद्रावती मॉडर्न पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल थे. इन्होंने हमें स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है और इन्होंने कभी कोई आशंका नहीं जताई है कि आप ना करें ना कुछ करें. इनका स्टार्टिंग से सपोर्ट रहा है, चाहे वो कितनी भी हमको लड़कियों को फुटबॉल खिलाना हो और ग्राउंड के लिए परमिशन हो. इतना अच्छा ग्राउंड भी इन्होंने हमारे लिए अरेंज कर रखा है. थैंक यू सोनू जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू.
हम हैं नागर पब्लिक स्कूल में डे 3 के लिए। हम हैं नागर जी के साथ जिन्होंने नागर पब्लिक स्कूल की शुरुआत आज से 25 साल पहले करी थी। तो आइए नागर जी से बात करते हैं। नमस्कार नागर जी, कैसे हैं आप? नागर जी, मेरा आपसे ये सवाल है, आप नागर पब्लिक स्कूल के बारे में हमको बताइए। आपने कैसे शुरुआत करी, अभी कितने बच्चे हो गए हैं, और आप क्लास 25 साल का वर्ष आपका कैसा हो रहा है? ये नागर स्कूल की जो आधारशिला थी, ये चीज़ें देख करके काफ़ी हमारे यहाँ इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी स्टार्टिंग में। हमारे इन इलाकों के बच्चों को कोई अच्छी शिक्षा नहीं थी, कोई माध्यम नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, इनके बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये सोच करके मैंने इसको स्टार्ट किया, और ये स्टार्टिंग हमने एक पेड़ के नीचे बैठ करके शुरू किया। लोगों का हमें सहयोग मिलता रहा, बच्चे भी धीरे धीरे बढ़ते रहे, उनका रिजल्ट भी अच्छा रहा और काफ़ी प्रोग्रेस किए उसके बाद। तो अगर अच्छा काम करेंगे तो सहयोग तो ज़रूर मिलेगा ही। जी। तो नागर जी, अब आपने एक पेड़ से शुरुआत करी और अब आपने पूरा एक प्रॉपर अब स्कूल खड़ा कर दिया 1st to 12th के लिए। और कितने बच्चे आते हैं अभी नागर पब्लिक स्कूल? बच्चे हैं करीब 600 बच्चे हैं फिलहाल स्कूल में 1st to 12th से। और आपका 12th है। तो नागर जी, अब आप पूछते हैं, सिंस हम लड़कियों को अभी फुटबॉल सिखाया नागर पब्लिक स्कूल की, छोटी लड़कियां 4 से 8 साल की उम्र में, मैं जब आपसे पहली बार मिलने आया था, आपने उस टाइम पे ही मेरे को आपने बोल दिया था कि हाँ आप कर सकते हैं। आपके दिमाग में ऐसा क्या था, आपको क्या ऐसा अच्छा लगा कि आपने हाँ एकदम से झट से हाँ बोल दिया? जो हमारा स्टार्टिंग का अनुभव था ये था कि शुरू में गाँवों में या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लड़कियों को पढ़ाने से थोड़ा सा हिचकिचाते थे लोग। उसी तरह से हमने जब इसकी शुरुआत करी तो मैंने घर घर जा कर के लोगों से संपर्क किया, उनके बारे में बताया कि लड़की की शिक्षा जरूरी है। यदि लड़का एक बार अशिक्षित है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो 2 परिवारों को शिक्षित कर लेती है। तो इस तरह से आगे भी हम ये चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ी सी सुविधाएं मिले, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो कुछ सीख सकें और अपने टैलेंट को बाहर निकाल सकें, वो चीज़ है। जी, थैंक यू सो मच नागर जी। मेरा यही सवाल था। नागर जी का सपोर्ट हमारे इनिशिएटिव के लिए स्टार्टिंग से ही रहा है। नागर जी ने हमको हेल्प करा। जो बाहर ग्राउंड देख रहे हैं, एक टाइम पे बहुत ऊंची घास होती थी, नागर जी ने स्पेशली वर्कशॉप के लिए वो हमारे लिए साफ करवाया कि वो अच्छे से हो जाए। नागर जी ने मैं ये भी बोला था कि गर्ल्स के पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए अगर नौबत आई तो घर घर जाके भी वो कन्विंस करेंगे। बिल्कुल वो हेल्प करेंगे। नागर जी का काफ़ी सपोर्ट रहा है और नागर जी जैसे लोगों की वजह से ही हम अपने मिशन को और भी अच्छे से अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद नागर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Good morning, and today is the 4th day of our Foundation Week celebration. आज हम आए हैं MBR Public School शादरा में और भूपिंदर सर और भूमिका मैम are training these girls. The girls are in full flow where they play football for the first time in their lives. Personally, it's a blissful experience for me to see these girls play football for the first time. They're not playing to score a goal, nor they are playing for getting a tackle in. They are playing just for pure fun and bliss. Now we talk to Amit जी, जो MBR Public School के मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और उनसे इस इनिशिएटिव के रिगार्डिंग उनसे ख्याल पूछते हैं। तो अब हमारे साथ हैं अमित जी, जो MBR Public School के मैनेजर हैं और सारी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं स्कूल की। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार अभी जी। सबसे पहले अमित जी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने हमको अलाउ किया कि हम ये गर्ल्स वर्कशॉप कर सकें। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मेरे को MBR पब्लिक स्कूल के बारे में कुछ बताइए। कैसे शुरुआत हुई स्कूल की, आपने कैसे था, कैसे बच्चे लाए और अभी कितने बच्चे हैं, कैसे हुआ? एक्चुअली हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी 2016 में, 2016 में। तो ये जो स्कूल है MBR पब्लिक स्कूल, ये दरअसल हमारे जो है दादाजी के नाम पर है। अच्छा। MBR स्टैंड्स फॉर मास्टर बाबू राम। अच्छा जी, वाह। एंड
जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने इसका जो फाउंडेशन है अच्छा वो लेट डाउन ले किया गए, था। अच्छा हमारे जो पिताजी हैं तो 2016 से मतलब हम लोग इसको चलाते आ रहे हैं। आई बीन वर्किंग एज ए मैनेजर ऑफ दिस। अच्छा जी। अगर हम बात करें बच्चों की, वी हैव अराउंड 300 स्टूडेंट्स प्रेजेंटली आइए यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट टू 12th नो फ्रॉम फर्स्ट टू प्राइमरी। दिस इज प्राइमरी स्कूल, ओके अच्छा ठीक है। सो आपने बोला 2016 से और अभी 2023 है, बीच में कोविड के टाइम पे आपके काफ़ी स्ट्रगल हुए होंगे। कोविड और के समय पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था। हाँ जी, और कैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, कैसे आप वो करते थे? क्लासेस हम स्टार्ट की थी पर लोगों ने जो है उसमें क्या है कि हमारे यहाँ जितने भी काम करने वाले लोग हाँ हैं जी। जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो उन लोगों के पास में एक मोबाइल होता था। सही बात उस है। मोबाइल को कैरी करके ले जाते थे। इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है। बच्चे हमारे यहाँ पर जो है ज़्यादा मतलब ऐसे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो ड्राइवर हैं, रियल स्टेट में काम कर रहे जी। हैं, तो वही जो है डेली बेसिस पे जो काम करने वाले हैं, इस तरीके के बच्चे हमारे यहाँ पर। बट स्टिल वो बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। आई थिंक काफ़ी बड़ी बात है कि वो पैसा खर्च कर रहे हैं कि एटलीस्ट बच्चे को बेसिक एजुकेशन और वो मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जी आपके MBR स्कूल में लड़कियां काफ़ी हैं, इसकी वजह से हम ये वर्कशॉप कर पा रहे हैं। आपको मैं जब पहली बार आपसे मिलने आया था और आपको मैंने बताया था, आपने उस टाइम पे एकदम से हाँ बोल दी थी कि हाँ अभी जी आप कर लीजिए वर्कशॉप। आपके उस टाइम में दिमाग में क्या था कि इस इनिशिएटिव के बारे में ऐसा क्या था कि आपने झट से हाँ कर दी? देखिए जहाँ तक बात है कि आज तक मैंने देखा है कि कुछ भी जो भी प्रोग्राम वगैरह जो लोग कराते हैं या कुछ प्रपोजल लेके आते हैं स्कूलों की तरफ, तो उसमें जो है स्पेशली आज तक मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि हम लड़कियों के लिए स्पेशली दिस प्रोग्राम इज़ फॉर स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड। हाँ जी। तो मुझे अच्छा लगा जो है कि आप जो है लड़कियों के लिए जो है लड़कियों को प्रमोट करने के लिए जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में जो है दरअसल जो है हम नहीं चाहते कि हमारी लड़कियां जैसे बाहर जा कर के जो है बाहर जा कर के ट्रैवल करके जो है एजुकेशन ले पाए गांव छोड़ करके। तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने आपको हाँ बोला कि थैंक यू सो मच। आप जो है लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हो जो है अपने फुटबॉल क्लब के माध्यम से जो है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो है, इसी वजह से मैंने थैंक यू अभिजीत। यही हमारा मेन मोटिव है कि हम MBR जैसे स्कूल्स को एंगेज करें, वहाँ से टैलेंट निकालें, और हम चाहते हैं कि इंडिया की अगली गर्ल्स बेस्ट फुटबॉलर MBR से निकले अगर आपका सपोर्ट रहा है। और वो तो थैंक यू सो मच अमर जी अगेन कि ये कर सके हम। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली आज का हमारा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बिगेस्ट चैलेंज था वो ये था कि हमें कुछ प्लेयर्स जिनने आज तक कभी फ़ुटबॉल नाम नहीं सुना है, आज उन्हें फ़ुटबॉल खिलाना था। सो उनको बताना था कि फ़ुटबॉल क्या होता है, तो हम उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ऑल थ्रू आउट द सेशन हमने ट्राई किया हम जितना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और जितना वो फ़न कर सकते हैं आज के सेशन में उतना करें। और फिर स्काउटिंग का तरीका जो हमारे था वो हम CDE बेसिकली जब बॉल प्लेयर के पास होती है तो वो कैसे रिएक्ट करता है वो हमें देखना था, उसके अकॉर्डिंग हमने प्लेयर सेलेक्ट किए हैं। तो आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा है आई थिंक, क्योंकि उनके लिए आज न्यू स्टार्ट था, पहली बार उन्होंने फुटबॉल खेला है, बट इट वाज फन। सारे गर्ल्स ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और बेसिकली जो है हमने गर्ल्स को इस तरीके से स्काउट किया है कि उनका बॉल को देख के उनका क्या रिएक्शन रहा है, उनका कम्युनिकेशन बॉल के साथ, उसके बाद में किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग, एंड ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन कि वो बॉल को किस तरीके से बिना उनको अच्छी तरीके से टेक्निकलिटीज़ पता हो कि वो किस तरीके से ड्रिबल कर पा रहे हैं या फिर पास कर पा रहे हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं। सो बेसिकली हमने इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रख के जो है उनको जो है सिलेक्ट किया है। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो ये था कि गर्ल्स एक्साइटेड बहुत थी, उसके बाद में नंबर भी काफ़ी अच्छा था हमारे पास गर्ल्स का। एंड चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा ये रहा है क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने इससे पहले सुना था फुटबॉल, देखा भी था, लेकिन खेलने के लिए वो पहली बार आई थी। तो आई थिंक इट वॉज फन फॉर देम ऑल्सो। और इसके बाद आई एम श्योर कि इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसके बाद भी वो खेलना चाहेगी नेक्स्ट सेशन में। सो अब यहाँ देखो ये क्या लिखा है ऊपर, देख रहे हो आप, ये जो है
FC नोएडा, है ना? नोएडा पता है सबको? नोएडा है जहाँ पे हम रहते हैं। F और C, FC का मतलब होता है फुटबॉल क्लब, तो फुटबॉल क्लब से हम यूज करते हैं उसको FC। तो फुटबॉल क्लब होता है कि जहाँ पे लोग, जहाँ आप जैसे बच्चे फुटबॉल खेलें। आपने हमारे साथ आज फुटबॉल खेला, तो आप लोग भी अब FC नोएडा के पार्ट हो गए, आप भी अब FC नोएडा से हो, ठीक है? और हम आपको फुटबॉल सिखाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो, ये फोटोज देखो, सबसे ऊपर देखो, ये है दीपिका। आप फोटो देख रहे हो इधर? दीपिका भी जब वो 11 ईयर्स की थी, 11-12 ईयर्स की, वो हमारे साथ फुटबॉल सीखती थी। और अब दीपिका 16-17 ईयर्स की हो गई है और अब वो इतना अच्छा फुटबॉल खेलने लग गई है कि वो पूरे इंडिया में घूमती है फुटबॉल खेलने के लिए। आपको भी घूमना है फुटबॉल खेलने के लिए इंडिया में? आप भी खेलोगे फुटबॉल वैसे? वेरी नाइस। अब देखो, अब ये जो है ये आपको अपने घर पे दिखाना है, किसको? अपने मम्मी पापा को, ठीक है? उनको आप दिखाना, उनको आप बताना कि ऐसे ऐसे है और वो हमको फुटबॉल दिलाएं और आपके वो फुटबॉल खेल कि आप शाम को फुटबॉल खेल सको। अब देखो बाकी नीचे की 3 फोटोज और देखो, ठीक है? सबसे पहली ये फोटो देखो ब्लू में, देख रहे हो? सबको दिख रहा है? ये है, इसका नाम बता सकता है कोई? क्या लिखा है? वेरी नाइस, बाला देवी। विराट कोहली को जानते हैं सब? विराट कोहली जो क्रिकेट टीम के कैप्टन है, वैसे ही बाला देवी हमारी इंडियन जो विमेन्स औरतों की फुटबॉल टीम है उनकी कैप्टन है। ये बहुत गोल मारती है। आज किस किस ने गोल मारे आज मैच में? वेरी नाइस। बाला देवी इतने गोल्स मारती है कि वो हमारी इंडिया की टीम की कैप्टन है। तो सबको बाला देवी बनना है कि नहीं बनना है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है? तो देखो और भी देखो, ये जो नीचे और भी 2 फोटोज हैं, दालिमा छिब्बर, वेरी, वो दिल्ली से ही है और वो भी इंडिया की टीम के लिए खेलते हैं। और उसके नीचे एक और फोटो है, उसमें क्या लिखा है? वेरी नाइस, अनुष्का सैमुअल। अनुष्का सैमुअल ये भी इंडिया के लिए खेलती हैं और ये भी बहुत अच्छी प्लेयर है, ये भी बहुत सारे गोल्स मारती हैं। और ये केरला पता है किसी को? केरला इंडिया में है, केरला, वहां पे जाके खेलती हैं। वहां की जो गर्ल्स की टीम है केरला की, वो बेस्ट टीम है इंडिया में और वो उस टीम में खेलती थी। तो आप देख रहे हो ये इतने सारे हैं जो गर्ल्स हैं और इतना अच्छा फुटबॉल खेलते हैं ये। नाम क्या है? किसका? ये क्या लिखा है? ये लिखा है FC नोएडा फुटबॉल स्कूल। यस, हम फुटबॉल के स्कूल है, मतलब हम फुटबॉल सिखाते हैं। अब से हम आपको सिखाएंगे, ठीक है? तो अब से सब मेरे को बताओ, प्रिया के घर में फुटबॉल है, अब जब भी किसी का बर्थडे होएगा या जो जन्मदिन होएगा, सब घर पे क्या मांगेंगे? वेरी नाइस। और फिर अपने अराउंड अपने दोस्तों के साथ क्या खेलेंगे? वेरी गुड। Hi all, I would like to take this opportunity to thank all of you for being a part of our 4th Foundation Week, where we finally come to a conclusion of taking care of all the activities which we did. We had the opportunity to work with 200 plus girls in the age of 6 to 10, and they were in the villages of Shahpur and village Shadra in 141.
and we plan to continue this engagement for the whole year, where on a weekly basis we go and give them the opportunity to interact with the sport. So that's part of our collaboration with Medha Foundation, and as you all you were all part of the workshop that took place on 7th, so we're really grateful for being part of this wonderful initiative, and we look forward to making sure that we propagate our values and spread the love of football across all the spectrums of society. And I'm really glad that we had a good kickoff to the Foundation League, and we want to make sure that our kids, our players, have a good time enjoying the sport on Sundays, and they get the expected match exposure which we aim for, and that is definitely very crucial for the player development. So again, I would like to thank all of you for being part of this, and I hope that we continue this journey for a very long term process. Thank you so much. So that was Shantanu sir with his word of thanks for our Foundation Day. Guys, that was it for our Foundation Week celebrations, where we celebrated Indian women's football and the passion for football amongst women. The principals and the parents involved had a clear support and a clear passion for women's football in the way they participated in our Foundation Week celebrations. So guys, keep tuning in and see our content on Instagram and Facebook, where we keep posting content about the working of FC Noida. Thank you. FC! Very nice. Chalo, clapping. Very nice, very nice.